Okay, voice, yeah, voice is clear. Okay, fantastic. So what I'll do, I'll just switch off my camera for a minute or so. Okay, and then we'll just start once again. Fine. Okay. Samir, किसी को भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज बेटा just do let me know. Okay, one sec. Yes, ठीक है ना? चल, मस्त शुरुआत करते हैं एकदम बहुत बढ़िया से, पहले से शुरुआत करते हैं बेटा. So structure of atom आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा? Everybody? Now you just can reply me into the chat box. Okay, I'm there. Okay, so don't worry. ठीक है. Okay. Structure of atom पढ़ा है. Very nice. Everybody, very nice. So I think आप सभी लोग जो you pass through the entire concept है ना, सारा concept आप लोगों ने किया हुआ है. और अभी क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का है ना. तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास में कि आई एम सेइंग कि भाई जो भी पर्टिकुलरली हमारा न्यूक्लियस है, आई एम जस्ट ड्राइंग द न्यूक्लियस अ लिटिल बिगर. ओके, इतना मेरा न्यूक्लियस है. ओके, और मेरा जो बोर थ्योरी बोलता था बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिवॉल्विंग राउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. पर फिर बाद में क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि ऐसा नहीं है भाई. Okay, at the same time, at any instant, you cannot tell about the position as well as a momentum. Okay, आप या तो पोजीशन बताओगे या तो मोमेंटम बताओगे, बराबर है ना बेटा? Heisenberg's uncertainty principle. तो मेरा ये सवाल है, बिल्कुल सही है बेटा वंश, मेरा ये सवाल है कि भाई क्या इलेक्ट्रॉन could be present in, okay, the nucleus? Can electron be present? So sorry. In nucleus? Yeah, somebody have said yes. Okay, this is a question. Most of the okay, बहुत सारे लोगों ने आपने कहा no. Fine. अगर suppose मैं ये कहूँ yeah, electron cannot be into the nucleus. Okay, सही है अंजलि, या बिल्कुल सही है बेटा, जितना लोग नो कह रहे हो बिल्कुल सही है. Because it's full of proton and neutron. Neil, okay, I wanna क्या बोल सकते हैं, हमको ऐसा वाला वो नहीं चाहिए. एटम कैन कोलैप्स, सीक श्रीकर. ओके, आई एम सॉरी. ओके, अगर सपोज मैं आपको प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर रहा हूं तो आई एम सो सॉरी. ओके, अभिराम इज सेइंग नो. The electrons revolve in orbits around the nucleus. It cannot present in the nucleus. सिद्धांत. Okay. Anybody else? नहीं ठीक है बेटा. I'm saying okay. Just we'll stick to the yes, no. Okay. युग. Okay. Yes कह रहे हैं युग. फिर कह रहे हैं no. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा. मेरा ये कहना है कि ठीक है यार, यहाँ पे मेरे पास में दो ऑप्शन है, मैं कह रहा हूँ yes और no. Then it should have been okay. Okay. And I'm saying कि नहीं यार, yes तो गलत है. Okay. No, the electron couldn't be there into the nucleus. Now this is correct. I mean, yes, it cannot be present. Okay, you fine, fantastic. I don't mind. Okay, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है यार, no सही है आंसर. But could anybody tell me, I mean, why it couldn't be into the nucleus? कौन सा वाला concept लगाएंगे? Okay, Hush doesn't have enough energy to be near nucleus. Okay. Anybody else? कौन सा concept लेके हम लोग बोल सकते हैं? Probability is 0. Fantastic. और कोई concept कोई बोल सकता है कि what is the concept we can use? कोई भी. Okay. Positive charge of nucleus repels. No, positive charge will attract now, beta. Alok, I'm so sorry if somebody have actually log in with their father's devices or somebody ना, होता है कभी कभी हम father के device से करते हैं और मैं फिर बोलना शुरू करता हूँ. So because I'm not aware, okay, मुझे नहीं पता कि कौन कौन है. ठीक है बच्चा. So I'm very sorry for that. But जो नाम दिखेगा मैं वही नाम लेके बोलेगा. Okay. Sir, if electron touch the nucleus, the atom get. नहीं, मुझे ये कहना है कि yes, sure. मैं ये कह रहा हूँ कि भाई yes, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं हो सकता. बिल्कुल सही है. What Niels Bohr, the nucleus will be in the first node. नहीं, बिल्कुल सही है बेटा. How can you prove that? I'm saying how can you prove that? Mathematically मुझे ये prove करना है.
Probably Heisenberg's uncertainty principle सही है बेटा, खुश, fantastic. Okay, yes, you can use Heisenberg's uncertainty principle. Now how can, okay, मैं आपसे कहूंगा आपके calculations भी बहुत फटाफट हो जाने चाहिए बेटा. Now we know that what is the diameter of the nucleus? The diameter of the nucleus is of the order of 10 to the power minus 15 meter, isn't it? बराबर है. तो diameter of the nucleus is of the order of 10 to the power minus 15 meter. सही है. Now if I say delta x, okay, into delta v should be greater than or equal to h upon 4 pi m. Everybody is knowing this thing. सही है ना बेटा? Okay, now this is Heisenberg's uncertainty principle. भाव्या बिल्कुल सही है बेटा. अब मेरा ये कहना है बेटा कि अगर सपोज इलेक्ट्रॉन को इतना डिस्टेंस के बीच में होना है, बिल्कुल सही है बेटा वंश. ओके, तो अगर सपोज इतना डिस्टेंस के बीच में इलेक्ट्रॉन को अगर सपोज होना है, बराबर है, ओके, तो द एरर, okay, should not be greater than 10 to the power minus 15 meter in the position. So if I just want to calculate delta V greater than or equals to h upon 4 pi m into delta x, taking the value of delta x to be 10 to the power minus 15, what should be the value of delta V? चलो calculate करके बताओ. h upon 4 pi m into delta x, where h is a Planck's constant, you know that. सही है ना बच्चा? आपको पता है Planck's constant है. m should be the mass of electron. सही है बेटा. 5.79, fantastic वंश, good. Delta V should be greater than or equals to, कितना वैल्यू निकाला बेटा? बाकी और किसी ने निकाला है वैल्यू? Just check out. 5.79 into 10 to the power 10. Anybody else? और किसी का मैच कर लेते हैं ना भाई. चलो फटाफट फटाफट फटाफट. और किसी ने नहीं निकाला बेटा? निकालिए निकालिए निकालिए. Take your time. देखो, I mean, this is the first session. Okay, let us get acquainted with each other. Okay, मेरा थोड़ा बोलने का स्पीड ज्यादा है क्योंकि मैं रोज यही करता हूँ. Okay, if somewhere आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्लो हो जाओ, just do let me know. But because this is an advanced class, okay, हम लोगों को ना एटलीस्ट, ठीक है, आज पहला क्लास है, मतलब मैं थोड़ा सा बॉदर नहीं करूंगा आपको, बट ऐसे कि यार देखो, तो हमको थोड़ा स्पीड तो बढ़ाना है ना? नो प्रॉब्लम. ओके, I'll just explain in detail. I mean, this is okay. This is a Heisenberg uncertainty principle. आपको याद होगा, delta x into delta p should be greater than or equal to h upon 4 pi. किया होगा बेटा आपने? 5.27 into 10 to the power minus 20. प्रथम थोड़ा चेक करो बेटा. Delta x into delta p equals to किसको चाहिए था एक्सप्लेन करके? I'm so sorry. I've missed that. Somebody was there. एक मिनट बच्चा. यस, सिद्धांत देखो बेटा, हमारे पास में हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. बराबर ना बेटा सिद्धांत? ओके, ये जो p है डेल्टा p, दैट इज अ मोमेंटम. ओके, तो मोमेंटम जो है बेटा, डेल्टा एक्स इंटू m इंटू डेल्टा v लिखा जा सकता है. वाई 10 to the power 18. ओके, आई गेस 10 to the power 8 तक 10 तक आंसर आना चाहिए. 10 to the power 10 तक. just check it out once again. 5.79 into 10 to the power 10. ओके माइकल, ओके, ठीक है, यहाँ देखो 5.7. आई एम सेइंग 5 to 6 का रेंज में आंसर आएगा. 10 to the power जो है आपका क्या आ रहा है बेटा? 10 आ रहा है. ठीक है, वहां तक आना चाहिए. जिनका माइनस आ रहा है ना बेटा, प्लीज चेक करो. 5.79 ओके. पावर क्या आ रहा है? 10 टू द पावर. ओके सिद्धांत, आई जस्ट गेट बैक टू यू कि मैं ये कह रहा था आपसे बेटा कि डेल्टा एक्स m इंटू डेल्टा वी h अपॉन 4 पाई है बेटा, है ना? तो अगर मैं m उधर लेके जाता है तो मैं बोलता हूँ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. इजंट इट? ओके सिद्धांत रिप्लाई करते रहो बेटा. ओके, तो मुझे पता रहेगा कि आपको ये समझा कि नहीं समझा. ओके, इसका मतलब ये बेटा कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन और वेलोसिटी, ओके, मिलके इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. अब मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है बेटा? मुझे अगर इलेक्ट्रॉन मेरा अंदर है, मैं मान के चलता हूं कि इलेक्ट्रॉन अंदर, नील करेक्ट है बेटा.
ओके, मैं मान के चलता हूं कि भाई ये अंदर है 10⁻10। फंटास्टिक रोहित। ओके, तो मैं ये मान के चलता हूं कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है बेटा सिद्धांत। ओके, तो उसका जो डायमीटर है इट इज 10⁻−15 मीटर। इसका मतलब मेरा जो एरर है या अनसर्टेनिटी है इनटू द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, इट शुड नॉट एक्सीड 10⁻−15। सही क्या बेटा सिद्धांत? है ना, वो 10⁻−15 से ज्यादा का अगर सपोज मेरा एरर हो गया तो न्यूक्लियस के बाहर चले जाएगा ना वो। ओके, इसलिए मैंने अनसर्टेनिटी इनटू द पोजीशन कितना ले लिया बेटा, 10⁻−15 ले लिया। ओके, और जब मैंने उसको 10⁻−15 ले लिया, अब मैं मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm इनटू डेल्टा क्या आ गया बेटा, x आ गया। अब सबने कैलकुलेट किया हुआ है ना, 5.79 into 10 to the power 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन को कहाँ होने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर होने के लिए द स्पीड शुड बी 5.79 into 10 to the power 10 मीटर पर सेकेंड, which is greater than the speed of capital light. That means error जो है बेटा, वो error in the velocity should be greater than the speed of light, which is not possible. Okay. Yes. Fantastic. Okay. Understood. है ना, ऐसा मस्त वाला कंसेप्ट होता है बेटा। जब हम लोग एडवांस पढ़ते हैं ना, ऐसे छोटी 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 चीजें, इट्स नॉट पॉसिबल कि नहीं तो इलेक्ट्रॉन को ना इतना स्पीड से इसके अंदर घूमना पड़ेगा न्यूक्लियस के अंदर, तभी वो न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई व्हाट हैपेंस कि इट इज नॉट देयर इनटू द न्यूक्लियस, इट इज समवेयर आउटसाइड। और आपने वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया हुआ है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस किया है बेटा कैलकुलेट। सही है ना, तो इफ यू जस्ट फाइंड आउट कि जैसे 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 हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं बेटा, क्या होते जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है? से बाहर 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 जाएंगे, वेलोसिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? यस। तो इसका मतलब बाहर जो वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, उसका कम है। अगर उसको न्यूक्लियस के अंदर होना है तो उसका वेलोसिटी जो इट शुड बी 5.79 into 10 to the power 10 meter per second, isn't it? This is a mathematical proof कि why electron cannot be there inside the nucleus. समझ में आया बेटा सबको? या 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 समझ में आया? किसी को भी कोई भी डाउट है बेटा पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द फर्स्ट डे। मैं चाहता हूं कि मेरा स्पीड से आप मैच कर लो। ओके, या मैं आपके स्पीड से मैच कर लूं, एनीवेज आई मीन बोथ वेज इट इज करेक्ट। ठीक है, ओके, सो दिस वाज अ कांसेप्ट फॉर यू। थैंक्स अ लॉट यू, थैंक्स अ लॉट बेटा। ओके, समझ में आया बेटा? ओके, शैल आई मूव डाउन टू द सेकंड वन? दूसरा वाला क्वेश्चन उठाओ कोई। माधव 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 माधव, आई एम एक्चुअली not able to understand which doubt. One sec, I'll just check it out beta. माधव, माधव कहाँ भेजा हुआ है माधव, मैं देखा नहीं। yes 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 yes, when we talk about well rotating, but actually क्या हुआ ना बेटा सॉरी, बोर्स के बाद में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में चले गए। ओके, ये हेजनबर्ग की वजह से, और हमको ये पता चला कि when we just talk about these orbits, actually it is a spherical one, it's not circular one. Beta particle is a different particle, no beta, that's why we call it as a beta. No, beta is not an electron, we say beta is similar to that of an electron, we don't say that beta is an electron. Madhav, ऐसे माधव ने पूछा था, नहीं विहान विहान विहान। ओके बेटा, ओके माधव, ओके विहान, बेटा बीटा जो रेडिएशंस होता है ना बेटा, बीटा, ओके, that beta particle is a different particle, it's not an electron, it is similar to electron. Okay, and it is inside the nucleus. Okay, fine. Now Vihan, is it okay?
I'm not just getting it. Yeah, I guess, I mean, you should have done all these concepts. I mean, I'm supposed to take the entire stuff with advance. Okay, but then even though, okay, when I'll come down to that point, definitely I'll explain you. Okay, don't worry. You want me to explain what's a wave cloud and electrons? I'll just explain that. Don't worry. ओके, मैं ऐसा धीरे 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 करके ना थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चले जाऊंगा. डोंट वरी. ठीक है, आता हूं बेटा उधर. ओके, फाइन. ठीक है. अब मेरा एक दूसरा सवाल है आपसे. When we talk about a nucleus, जब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं बेटा, and we say that nucleus comprises of protons and neutrons, isn't it? Okay, and they are being generally they are combinedly called as nucleons. सही है ना बेटा? तो if I just talk about a hydrogen, okay, hydrogen में एक proton है, okay, there is no neutron, fantastic. But when we just talk about 92U238, okay, so how many protons are there and how many electrons are there, okay, and how many neutrons are there? चलो फटाफट कैलकुलेट. ये तो आसान सा सवाल है कि कितने प्रोटॉन्स है. 92 प्रोटॉन्स, फैंटास्टिक. 92 प्रोटॉन्स, श्रीकर सही है बेटा. 92 protons. Okay, electrons 92, बिल्कुल सही है. And then there will be how many? 146 neutrons. बिल्कुल सही है बेटा, 146 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए. अब मेरा ये कहना है बेटा कि ये इतना सा छोटा सा जो न्यूक्लियस था, इतना सा छोटा सा न्यूक्लियस. ओके, ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं न्यूक्लियस के बारे में क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको. ओके, नाउ व्हाई, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पहुंचने में मुझे आसानी हो जाएगी. ओके, ये देखो. अब जब मैं 92U238 की बात करता हूँ बेटा, तो इसके अंदर बहुत सारे जो है हमारे क्या बेटा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एकदम ठूस ठूस के भरे हुए हैं ना भाई, है ना. अब इतने सारे प्रोटॉन्स है, इतने सारे न्यूट्रॉन्स है ना, जो एकदम ठूस ठूस के भरे हैं इसके अंदर. अब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसके अंदर हमने ठूस ठूस के भरे हुए बेटा, ओके, तो उसको अनस्टेबल होना बिल्कुल सही है बेटा. व्हाई? क्योंकि देखो जो प्रोटॉन, देखो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, बिकॉज देयर इज नो व्हाट यू कैन से चार्ज, भाई ठीक है, वो रिपेल नहीं करेंगे. न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी इंटरेक्शन जनरली नहीं होना चाहिए. लेकिन क्या होता है कि जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है उनके बीच में तो इंटरेक्शन होना चाहिए ना बेटा, है कि नहीं. प्रोटॉन और प्रोटॉन में इंटरेक्शन तो होना चाहिए. तो भाई ये जो प्रोटॉन और प्रोटॉन में इंटरेक्शन होगा, दे शुड रिपेल, है ना, इतना तगड़ा रिपल्शन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने फिजिक्स में भी एक कांसेप्ट पढ़ा हुआ होता है ना, F equals to Q1 into Q2 upon 4 pi epsilon 0 kr square. And we say that the force of attraction or repulsion should be directly proportional to the product of their charges. बराबर है बेटा? या सही है यश, आता हूँ उसके ऊपर ही आता हूँ. तो मैंने अभी ना बेटा न्यूक्लियस से क्यों शुरुआत करी, मैं वो भी बोलता हूँ. ओके, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये एक छोटा सा पार्ट जो है वो मिसिंग होगा, वो हमको कहाँ से लेना है वो भी बोलूंगा. ठीक है बेटा, ये केमिस्ट्री में भी आता है, आपको फिजिक्स में भी पढ़ने के लिए मिलेगा. वेरी वेरी फैंटास्टिक पार्ट. तो मैं चाहूंगा कि साथ साथ में अगर सपोज आप कभी पढ़ पाओ तो ये भी कर लेना. एंड देन आई विल स्विच डाउन टू अनदर न्यूमेरिकल. It is not necessary every other time, ओके, कि भाई वो शील्ड करते. देयर इज डिफरेंट डिफरेंट थियरीज, पर मैं उसमें से कुछ ना टर्म्स बोलना चाहता हूँ जो आपको छोटा छोटा चीजें ध्यान में रखना है. ओके, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर सपोज एफ जो होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटा द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. ओके, एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सही है ना बेटा? Now, when we've been talking about कि भाई जो डाया है किसका बेटा, न्यूक्लियस का, इट इज 10 to the power minus 15 meters, है ना. तो अगर सपोज डाया इज 10 to the power minus 15 meters का डायमीटर है, which is very 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 small. If I just want to write down, it is 0.1 2 3 4 5 6, oh sorry, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, I'm so sorry. Okay, इतना मैं बोल रहा हूँ यार.
इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन विल बी वेरी 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 लेस। सही है ना? तो अगर सपोज कोई ये बोलता है कि भाई न्यूट्रॉन्स उनके बीच में आ जाता है, तो यार देयर आर 146 क्या बेटा प्रोटॉन्स। ओके, so there will be very great repulsion. So do you know how much is the repulsion into the nucleus? Nucleus के अंदर repulsion कितना होता होगा? It's of the order of 10 to the power 6 tons. इसका मतलब ये पार्टिकल जो है ये क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। ओके, और इतना ज्यादा रिपेल करते हैं कि 10 टू द पावर 6 टन्स इतना जो है अंदर से फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट होगा। बिल्कुल सही है। नाउ 10 टू द पावर 6 टन्स मींस हाउ मेनी केजीस? अच्छा, द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 9 केजीस। क्या सही है बेटा? है ना, 10 टू द पावर 9 केजी। यस। अब आप ये सोचो यार कि इतना अगर सपोज हम बात करते हैं कि इकट्ठा 10 टू द पावर 9 केजी वेट कई जगह पे गिर जाए, एक जगह पे एक पॉइंट पे, तो जितना फोर्स एक्सर्ट होगा उतना फोर्स उस बेचारे छोटा सा न्यूक्लियस के अंदर एक्सर्ट हो रहा है। यार ये इतना फोर्स जब एक्सर्ट होगा तो उसको तो फूटना चाहिए, है ना? लेकिन जब हमने स्टार्ट किया, चलो बताओ किसने सबसे पहले आइडिया दिया न्यूक्लियस का? मैंने इसलिए कहा कि मैं धीरे धीरे कंसेप्ट को लेके जाऊंगा आगे। कौन दिया भाई न्यूक्लियस का आइडिया? क्या डाल्टन को पता था? नहीं, रुदरफोर्ड। फंटास्टिक। रुदरफोर्ड बेटा, रुदरफोर्ड बोला था बेटा हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से। ओके ठीक है, रुदरफोर्ड बोला बेटा कि न्यूक्लियस होगा, बराबर ना बेटा? तो जब वो बोला न्यूक्लियस, वो आपने गोल्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना बेटा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? बिल्कुल सही है बेटा, है ना? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही है। तो जब ये न्यूक्लियस बोला तो यार ये सवाल भी तो आना चाहिए कि अगर उसके अंदर प्रोटॉन्स है, इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, है ना? उसके अंदर अगर सपोज क्या है बेटा, वो पार्टिकल्स आए, तो ये पार्टिकल्स यार इतना तगड़ा फोर्स अंदर से एक्सर्ट कर रहे हैं। जब ये पार्टिकल्स इतना फोर्स, ये बिल्कुल सही है बेटा माधव। ओके, तो जब इतना तगड़ा जो फोर्स है वो एग्जर्ट कर रहे हैं बेटा, है ना, तो न्यूक्लियस को तो फूट जाना चाहिए। और न्यूक्लियस फूट के ना बेटा, ये जो पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे के इतने दूर जाने चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ क्या बेटा, एन एटम। भाई एटम का जो मेन वाला हिस्सा था न्यूक्लियस, वही तो फूट गया, क्योंकि फोर्स काफी तगड़ा है। नाउ मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंट एंटायर डिफरेंट पार्ट इन केमिस्ट्री which we used to call as a nuclear chemistry. Okay, जो अभी आप मोस्ट प्रोबेबली नहीं देखो। यस, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, बिल्कुल सही है बेटा श्रीकर, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। ओके, लेकिन ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी होता है, जो पार्ट अभी आपको केमिस्ट्री में आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाले पार्ट के बारे में हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ते हैं, जहां पे अभी किसी ने आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, सॉरी, मेरे ख्याल से हाँ पूछा था बेटा कि यार ये बीटा पार्टिकल के बारे में। तो आपको ये पता चलेगा यहाँ पे कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं। देयर इज अ थ्योरी गिवन बाय युकावा, है ना? यस, बिहान यस, बिहान ने पूछा था। देयर वाज अ थ्योरी गिवन बाय युकावा, है ना, कि भाई ये क्यों, देयर इज अ न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स, यानी इतना तगड़ा फोर्स कि जो क्या करता है, न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखता है। ओके, और उसको फूटने नहीं देता, यानी ये फोर्स काफी तगड़ा होता होगा ना भाई? यस, बिल्कुल सही है, युकावा का थ्योरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्टार्ट चेंजिंग इनटू ईच अदर, बिल्कुल सही है, इंटर कन्वर्शन, युकावा वाला थ्योरी, बराबर है ना? और उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज यूटिलाइज इन बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनटू द न्यूक्लियस, बराबर है ना? न्यूक्लियस के अंदर उनको बांध के रखता है, बिल्कुल सही है बेटा। ओके, अब मैं ये क्यों बताना चाहता हूं आपको, ध्यान दो। ये वाला जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे दिमाग में बहुत बार ये सारे कंसेप्ट घूमते रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ओके, और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, but we are not related, atomic structure में we are not related to this part which is called as a nucleus. We are talking about this part which is called as extra nuclear part. Okay, so just make it clear कि भाई ये मेरे पास में दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम
जो क्या करेगा बेटा, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में बात करेगा। और दूसरा वाला जो है मेरे पास में एक और है, ओके, जो विच इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो सिर्फ इसके बारे में बात करेगा, इतने वाले पार्ट के बारे में। यस, सो सीकर बिल्कुल सही है बेटा, वी विल बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट विच इज कॉल्ड एज एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ओके, और उसका अरेंजमेंट। और इसीलिए आप कहां तक पहुंच गए बेटा, क्वांटम नंबर्स तक, है ना। तो हम सिर्फ इसके बारे में ही बात करेंगे, ओके। हम अभी जो है किसके बारे में बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में, विल नॉट टॉक अबाउट न्यूक्लियर। इट्स वेरी फैंटास्टिक सब्जेक्ट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज वेरी वंडरफुल, ओके। देयर इज सोडियस ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, और बहुत सारी चीजें होती है, नई नई, मस्त मजा आता है उसमें पढ़ने के लिए। वो मजा बाद में लेंगे, है ना। आज हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का मजा लेते हैं, ठीक है बेटा। सो कमिंग बैक, ओके, मैं आपको क्लैरिटी दे दिया हूं कि बेटा हम ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में ही बात करेंगे, ओके। तो फिर मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड वगैरह के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस कि यार इसके ऊपर एक मस्त वाला छोटा सा जो है ना मुझे क्वेश्चन मिला है, ओके। एंड आई जस्ट वांट यू टू जस्ट गो थ्रू दीस क्वेश्चंस, है ना। एक छोटा छोटा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ओके। मैं सीक्वेंस बना देता हूं, है ना। सीक्वेंस में सबसे पहले वाला आया था बेटा डाल्टन, one sec. So basically the repulsion in nucleus due to proton makes the nucleus unstable and the neutrons are emitted as no beta, okay. I'm just not getting your name. It's BAO2. I'm so sorry. What's yeah, Devesh. Oh, I'm so sorry. Devesh, it's not so. Okay, there are different theories which prove कि बेटा जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है ना, वो जितना रिपेल करेंगे उससे ज्यादा तगड़ा फोर्स होता है जो उनको बांध के रखता है। और ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, दिस इज एनर्जी और द फोर्स, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स जो होता है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। They said it is independent of the charge, और वो इतना तगड़ा होता है कि 10 to the power क्या बेटा, 10 to the power जो हम लोग कह रहे थे ना बेटा 9, 10 to the power 9 kg को भी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, उसको जो है क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी काम कर रहे हैं। तो ये जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, आई मीन इट कुड एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। श्लोक, वन सेक, हम लोग टॉपिक से दूर जाना शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा। From where does the nuclear binding? Yeah, that is the reason why श्लोक I told you कि हम ये पूरा के पूरा कंसेप्ट ना बेटा वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसलिए जो भी डाउट्स आएंगे ना वो सारे मैं क्लियर करूंगा। ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, वो मैंने कहा था ना युकावा, अभी बहुत सारे लोगों को पता था, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा, ओके श्लोक, है ना। युकावा वाला थियरी वो बोलता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होते रहते हैं, पाई मेसन और म्यू मेसन पार्टिकल्स का कंसेप्ट है, ओके। सो ठीक है, मेसन पार्टिकल्स का कंसेप्ट होता है, तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट। मैं सिर्फ ये इसलिए बताना चाहता था क्योंकि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें ना हमारे दिमाग में चलती रहती है, यार ये न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ना है। बट हमको अभी इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि देयर वर इलेक्ट्रॉन समवेयर, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, and this is electrostatic force of attraction, okay, between the positively charged nucleus and negatively charged mobile and delocalized electrons. These electrons are moving continuously. किधर है क्या है हमको नहीं पता, हाइजेनबर्ग बोलता है। तो सबसे पहले आया था बेटा डाल्टन, ओके। क्या डाल्टन को मॉलिक्यूल के बारे में मालूम था बेटा, या न्यूक्लियर फोर्स, ओके। न्यूक्लियर फोर्स ये इसके अंदर की बात कर रहे हैं बेटा, अभी हम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। चलो, क्या डाल्टन को मॉलिक्यूल के बारे में मालूम था बेटा? नो, वो मॉलिक्यूल को क्या कहता था, आपको कुछ पता है? नहीं नहीं, और कुछ, इसलिए मैं वो ये सारे या सॉलिड नहीं नहीं बेटा, युग अदर्स कैन आल्सो रिप्लाई, यार कुछ नहीं होता है इसमें, थोड़ा नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। प्लम पुडिंग तो बेटा वो थॉमसन दिया था। Yeah, atoms of different elements combine with each other to form, कुछ बोला था बेटा उसने, कंपाउंड एटम। क्या प्रथम प्रथम आपने जो स्टेटमेंट लिखा है ना बेटा, उसके जस्ट आगे है, atoms of different element combine with each other, okay, combine with each other
टू फॉर्म क्या बेटा, कंपाउंड एटम, ऐसा बोला था उसने. ओके, which we know that it is wrong. Okay, compound atom. लेकिन भाई ये क्या होता है कि भाई जब हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग जब थ्योरीज पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं और फिर बाद में बोलते हैं ये गलत है. ओके, फिर उसके बाद का थ्योरी पढ़ते हैं, बोलते हैं सर ये भी गलत है. बराबर ना बेटा, है ना? तो फिर हम पढ़ते क्यों हैं? ये सवाल तो आता होगा ना आपके दिमाग में कि जब हमने ये बोलना ही है कि भाई ये गलत है, तो फिर गलत वाला पढ़ क्यों रहे हैं? जो सही वाला वही पढ़ाओ ना. ऐसा है ना? आता है ना दिमाग में, हमेशा आता होगा, अरे यार इतना सारा पढ़ लिया, बाद में बोल रहे यार ये गलत है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही है. यार ये तो बहुत फैंटास्टिक चीज है ना. ये नहीं नहीं सीकर टाइम पास क्यों करेंगे भाई? इतना बड़ा चैप्टर दे देते हैं. वी डोंट मेक सिमिलर एरर्स अगेन. ओके, ये एक रीजन हो सकता है. बट क्या होता है ना बेटा, हर एक जो थ्योरी था ना बेटा, उससे कुछ ना कुछ लिया है हमने. जैसे डाल्टन के बाद में थॉमसन आया बेटा, और जो थॉमसन था बेटा, वो थॉमसन क्या कहेगा, आपको याद होगा कि थॉमसन एक प्लम पुडिंग मॉडल बोला था. हाँ, उसमें से कुछ कंसेप्ट हमने लिए. बराबर ना बेटा? यस यस, कुछ चीजें सही थी वो हमने आगे की. हर एक में हम लोगों ने अमेंडमेंट्स किए, नई जो चीज है ऐड की उसके अंदर. जैसे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल क्या बोला था बेटा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. हम आज भी बोलते ना बेटा वो न्यूट्रल है ना? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बेटा कौन पूछा, कुछ डाउट बोल रहे, वन सेक बेटा. ओके, मैं देखता हूँ. Yes, every theory is an upgrade version of the previous one. Fantastic. Madhav. What was the doubt? एक मिनट बेटा. Madhav, I'll just scroll down और मैं चेक करता हूँ बेटा आपने क्या पूछा था. माधव कहाँ चले गया? माधव. Can you put it once, माधव? मुझे ना बेटा इसमें मैंने स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ चैट, तो उसमें मुझे मिल नहीं रहा है. कैन यू जस्ट पुट इट वंस, है ना माधव प्लीज? उस पे भी आएंगे बेटा माधव. देखो, कलर कब होता है माधव, है ना? आते हैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, है ना? मैं ये पूछने भी वाला था कि भाई क्या एटम को कोई कलर होगा, एटम को कोई कलर होगा, है ना? ये भी पूछने वाला था मैं. ठीक है ना? डू एटम्स इवेंचुअली टच ईच अदर? एक कंसेप्ट आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया बेटा? सीकर नहीं. ओके माधव, you'll get to know that about into chemical bonding. जब बॉन्डिंग होगा ना तब आप समझोगे इस चीज को कि भाई ये ओवरलैपिंग होता है. ओके, ऐसा कंसेप्ट था, ओवरलैपिंग होगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा. हो गया है वंश? अच्छा, वंश का हो गया है. माधव आपका हो गया बेटा? ओके माधव, उसमें आपने कोवालेंट रेडियस पढ़ा है बेटा? चेक करो, आयनिक रेडियस पढ़ा है बेटा? अच्छा, सबका हो गया. गुड गुड गुड, है ना बेटा? तो वहां पे आपने कुछ कहा है बेटा, एक कंसेप्ट लिया हुआ है कि भाई दो एटम्स है और दो एटम्स के बीच में क्या हुआ था बेटा, ओवरलैपिंग हुआ था. तो दो एटम्स के बीच में अगर सपोज ओवरलैपिंग हुआ था, सही है ना बेटा? यस, क्लियर है ना? गुड 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 गुड. देखो ये सारे चैप्टर जैसे मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट एक दूसरे को रिलेटेड है. ओके, नाउ लेट मी जस्ट अगेन ब्रिंग यू ऑल इन ऑन टू ट्रैक. ओके, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस करना है, बिकॉज आई कम टू नो कि भाई आपका मस्त हुआ है, एवरीथिंग क्लियर है. ओके, न्यूक्लियर नेवर टच ईच अदर बिकॉज दे विल रिपेल, क्योंकि वो सिमिलरली चार्ज्ड है. ठीक है, बढ़ता हूँ आगे. अभी न्यूक्लियस ओके के बारे में बहुत बात कर ली, अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे भाई. ओके, फिर रुदरफोर्ड आया. If all atoms are 99% hollow, why glass transparent and other solids are opaque? Now, in fact, I mean there are some other solids also which are transparent. Okay, but that is a different story. Okay, that is a different, entirely different story that you get to know जब हम लोग solids पढ़ते हैं, structure of solids. Okay, भाई मुझे ये समझ में आता है कि जब लाइट कोई चीज में से आर पार चले जाएगा,
बराबर है ना, तभी तो वो ट्रांसपेरेंट होगा ना. So that is the nature of the material. Okay, it's not the nature of the atoms. नहीं नहीं, बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा, मतलब स्ट्रक्चर्स, मतलब देखो बॉन्ड्स दो तरीके के होने चाहिए, एक तो वांडरवॉल्स फोर्सेस होने चाहिए, ओके, नहीं तो बॉन्ड्स बेटा जो है केमिकल बॉन्ड्स होने चाहिए, बराबर ना बेटा, है ना, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. सो इट 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 डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर में क्या गैप्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके चलो, जस्ट गेट बैक टू द ओरिजिनल थिंग. ओके, इसका मतलब नाउ आई कम टू नो कि यार हाँ हुआ तो सबका है. ओके बस ये है कि बहुत सारी चीजों के फॉर्मूलाज, बहुत सारी चीजें जो है वो लर्न जो है वो हमें नहीं होती है, और इसलिए कभी कभी ना दिक्कतें कर जाती है, बट सारे कंसेप्ट एक ही जगह पे नहीं लगाना है भाई. ओके ना, लेट मी जस्ट मूव ऑन टू. ओके, उसके बाद में आपने रुदरफोर्ड, आई एम सो सॉरी, उसके बाद में आपने रुदरफोर्ड का बात किया. ओके, उसके बाद में कौन था बेटा, हाँ बोलो, उसके बाद में कौन आया, रुदरफोर्ड के बाद में बेटा बोर्स आया. लेकिन उसके बीच में दो ऐसी चीजें थी बेटा जो जरूरी थी बोर्स के लिए, और ये दो चीजें कौन कौन सी थी बेटा, मैक्सवेल का जो मैकेनिक्स था, हाँ सही है. दो चीजें थी, एक था बेटा पहला वाला समरफेल्ड, ना दो ऐसी चीजें थी विच वर बीइंग रिस्पांसिबल फॉर बोर्स एटॉमिक थियरी. Okay. N number. I'm very happy to know that there are n number of questions in your mind. Fantastic. We'll clear it. Don't worry. बस मस्त मजा आता है ना, ऐसे क्वेश्चंस होता है ना तो बहुत मजा आता है. ठीक है, क्योंकि भाई जब when we are preparing for advance, okay, it's very what you can say fantastic. बोर चैलेंज आइंस्टाइन, हाँ बेटा हाँ बिल्कुल सही है, इस चैप्टर में नहीं इस चैप्टर में बिल्कुल चैलेंज नहीं करूंगा उसको. Heisenberg and Goldstein. नहीं. What were the developments which were actually responsible for the Boers? क्या दो developments जरूरी वाली. अरे डोपिरेनर कहाँ से आ गया बच्चा. ओके, प्लैंक्स क्वांटम थियरी. ओके, could I say dual nature of matter? Sorry, dual nature of electromagnetic radiations. क्या, so dual nature of electromagnetic radiation बिल्कुल सही है बेटा. And then and what was the next one? Quantization of energy. देखो स्टिक टू बेसिक्स बेटा, मतलब क्या है ना, हम n नंबर ऑफ चीजें इकट्ठा सोचने की बात नहीं करते. हमें ये जो चीजें है, मैं किस चीज के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराने की सोच रहा हूँ ना, वो बता रहा हूँ मैं आपको. सो ये दो चीजें थी बेटा जिसमें क्वांटाइज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा आपने, उसके अंदर जो है हम लोगों ने फिर फ्रीक्वेंसी, ओके, टाइम पीरियड, ओके, जो आपके फिजिक्स में भी होता है वो भी आपने देखा है, और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी आपने पढ़ा है बाद में. ओके, सो ड्यूअल नेचर में आपने पढ़ा होगा कि भाई देयर इज अ पार्टिकल नेचर एंड देयर वाज क्या बेटा, पार्टिकल नेचर के अलावा आपने क्या पढ़ा है बेटा, वेव नेचर. तो वेव नेचर आपने पढ़ा होगा डिफ्रैक्शन. मैं सिर्फ टॉपिक्स बोलते जा रहा हूँ सो दैट जब न्यूमेरिकल्स करूंगा तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से आया डिफ्रैक्शंस. ओके, यस, इंटरफेरेंसेस बिल्कुल सही है बेटा. और पार्टिकल नेचर में आपने किया हुआ बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ओके, और दूसरा वाला किया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक. इफेक्ट. ओके, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक और कंसेप्ट किया होगा आपने, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. Isn't it? ओके, और फिर उसके बाद में हमने कहा कि बोर्स का जो भी
You might have done that बेटा, black body radiations. कोई बात नहीं, कोई बात, जो मतलब मैं सिर्फ हाँ, ओके, नॉट एन इशू, नॉट, कोई बात नहीं बेटा, मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स कराना है उसके ऊपर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चीजें हुई है वो आप लोगों को याद आनी चाहिए, इसलिए मैं रिवर्स कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा बेटा, वंश, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ओके, इट्स वेरी मतलब इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, डोंट वरी, ओके। तो मुझे एक ना आइडिया आ जाएगा आज जब मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले लेक्चर से फिर ना वही मजा आते रहेगा, क्योंकि माधव माधव माधव, just step back, एक मिनट, okay, I'll just clear all the doubt, don't worry बेटा, okay, I am just not getting you, why on the atom collapse if they are, oh, okay, there is a centripetal force and centrifugal force. मुझे एक चीज बताओ बेटा माधव, माधव मराठी समझते हो ना? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। देखो, एक पत्थर होता है आणि त्या तो जर का समजा, आई एम सो सॉरी, हाँ, बाकी बाकी लोग समझते नहीं समझते मुझे नहीं पता, ठीक है, और उसमें एक धागा बांधा है, ओके, और अगर सपोज मैं इसको घुमाता हूँ बेटा, तो वो कब तक गोल गोल घूमते रहेगा, जब तक कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज विल बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना बेटा, सेंट्रीपिटल, okay, Mata, I'll just come down to your doubts, okay, I mean, I'm so sorry, yeah, but though this is not a doubt session, but I'm bound to solve your entire doubts, don't worry, okay, this is not a doubt session, but ठीक है बेटा, ओके, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में बहुत डाउट्स होते होंगे, डोंट वरी, नेक्स्ट वाले क्लास से ये सारे डाउट मुझे समझने तो दो कि मतलब क्या क्या करना है ना, क्योंकि मुझे एडवांस का लेक्चर करना है, तो मुझे बहुत सारे और बहुत तगड़े वाले कंसेप्ट कराने हैं, ठीक है ना, तो मुझे ये बेसिस, ठीक है, आपने जो डाउट लिखे आप लिखते रहो, तो मुझे पता रहेगा कि मुझे और क्या बोलते रहना है, ठीक है, डोंट वरी, ओके, एंड या फंटास्टिक, 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 वहां देख लिया मैंने, वो देख लिया, मैं वही बता रहा था आपको, बट यू सेड कि नहीं उसके बाद वाला डाउट, डोंट वरी, ओके, ये भी सब बोलूंगा, ओके, वही बताऊंगा, ठीक है, वो सारा बताऊंगा, वो इसलिए तो पत्थर वाला लिया था बेटा मैंने, उसके बीच में भी तो एम्प्टी स्पेस होता है, लेकिन जब तक क्या होता है बेटा, मैं उसको घुमाते जा रहा हूँ, है ना, ये बंदा जब तक कि उसको घुमाते जा रहा है बेटा, तब तक वो गोल गोल घूमेगा ना बेटा, है ना, इसके बीच में एम्प्टी स्पेसेस है कि नहीं बेटा, why is not being collapsing, क्यों, क्योंकि उसको बेटा वेलोसिटी है ना, वो घूम रहा है, तो there is a force which is taking it out, there is a force which is being taking it in, there is a centripetal force and centrifugal force, ये दो फोर्सेस होते हैं ना बेटा, है ना, उसके वेलोसिटी के कारण जो है वो इट इज इनटू दैट पर्टिकुलर क्या बेटा, दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा, बराबर है ना, आप देखो, यस माधव, अगर सपोज मैं थोड़ा ढीला कर दूंगा ना बेटा उसको, या मैं अपना फोर्स लगाना कम करूंगा, आके लिपट जाएगा मुझे, लागेल ना माला, ठीक है ना, इट विल गो लाइक, ओके, फंटास्टिक, ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट मूव अहेड, ओके, यार दो ही क्वेश्चन करा पाया, कोई बात नहीं बेटा, पहला दिन है, ठीक है, ओके, ना फोर्स के बाद में फिर आपने किया है बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मेरा कहना है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए दो और इफेक्ट्स जो है, या दो और जो है क्या बेटा डेवलपमेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल, वन वाज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, नहीं, हाँ, वो नहीं बता पाया था, बोर जीमन इफेक्ट नहीं बता पा रहा था, ओके, स्टार्क इफेक्ट नहीं बता रहा था, है ना, वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, ओके, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस वाला था वाज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, हाँ बेटा, स्टार्क इफेक्ट नहीं बताया, बिल्कुल सही है, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है बेटा, वो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आया बेटा, वो तब आया, बिल्कुल सही है, वो तब आया जब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात हुई, ओके, और ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कौन एक्सप्लेन किया था बेटा, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली क्या बोला था बेटा, lambda equals to h upon mv, okay, this lambda gives you the wave nature of matter, okay, and this momentum gives you the particle nature, ये आपको पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है, यस 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 यस, ओके, और इसीलिए जब कोई आप देखोगे ना रेस वगैरह दिखती है, या कार वाला रेस वगैरह, तो उसके पीछे उनका ऐसा ऐसा डायग्राम करा के देते हैं, सो दैट दे शो दैट
qubits of wave, but it is not applicable to macroscopic bodies, it is applicable to only microscopic bodies. बराबर ना बेटा? अब उसमें और एक चीज था बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर था और हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था. मैंने आपको एक चीज ओवरव्यू में जानबूझ के आपको बताना चाहता कि हमने क्या क्या पढ़ा. Now I just want you to apply all the concept that you have been used, okay, or that you have been using into the numericals. उसको मुझे न्यूमेरिकल्स में करा के देना है. जैसे आज का दूसरा सवाल है ना, आज का दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं. इफ यू जस्ट राइट इट डाउन दैट विल बी बेटर. ओके, an electron beam एक इलेक्ट्रॉन बीम है बेटा, ओके, कैन अंडरगो डिफ्रैक्शन so an electron beam can undergo diffraction by crystals. Okay, now through what potential sorry, after something had fallen down. Okay, so through what potential a beam of electrons be accelerated okay, so that its wavelength becomes equal to 1.55 okay angstrom. Okay, okay, and this was being asked in IIT 1997. ओके, प्लीज मुझे पता है बेटा वी आर वेरी मतलब क्या बोलते हैं वेरी मच यूज्ड टू यूजिंग द गैजेट्स. ओके, तो आप उसको सर्च करके आंसर्स देखने की कोशिश करो, बट ऐसे कि नहीं क्यों करना है ऐसा, है ना? इट्स नॉट एन एग्जाम. ओके यार, किसने पहले सॉल्व किया तो उसको जो है प्राइज मिलने वाला ऐसा भी नहीं है. ओके, व्हाट कॉन्सेप्ट्स वी कैन अप्लाई, है ना, वो हमको देखना है. यस, वो क्या पूछ रहा है बेटा? एन इलेक्ट्रॉन बीम कैन अंडरगो डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स ओके थ्रू व्हाट पोटेंशियल. अब यार ये पोटेंशियल वाला कंसेप्ट किधर आया था? तो पोटेंशियल वाला कंसेप्ट है, यस, ईवी वाला फॉर्मूला यूज करना है. विराज बिल्कुल सही है ना? फटाफट शुरू हो जाओ. अगर सपोज आपको पता है तो फटाफट शुरू हो जाओ. हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू ईवी. यस, ओके. अब पूछा क्या है बेटा? थ्रू व्हाट पोटेंशियल अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड so that the wavelength becomes equal to. now wavelength भी आना चाहिए भाई उसके अंदर. ओके, मुझे पता है. and क्या होना चाहिए बेटा? lambda will be equal to h upon mv. सही है ना बेटा? अब इन दोनों को यूज करके, ठीक है, यू कैन जस्ट डिराइव इट. अब मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ सकता है. मैंने आपको जानबूझ के दोनों चीजें लिख दी यहाँ पे जो आप यूज कर सकते हो. उसने पूछा है आपको व्हाट पोटेंशियल, इसका मतलब मुझे ये v निकालना है बेटा. और मुझे लैम्डा भी पता है.
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ v इक्वल टू हाफ h स्क्वायर बाय m लैम्डा स्क्वायर e? ये आपको पता है, ये आपको पता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ऐसे न्यूमेरिकल में ये भी याद होना चाहिए। This is a potential, this is my wavelength। कितना आ रहा है बेटा? 62.5। ओके, अगर ये इंटीजर्स में होता तो आपका गलत हो जाता। हाँ बेटा, या यू आर क्लोज, 63.3 वोल्ट। बाकी लोगों को समझ में आया बेटा? ओके, मैंने आपसे ये कहा कि भाई मुझे ये भी रिलेशन पता होना चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि जब मैं ये डिराइव करते बैठूंगा तो मेरा टाइम जाएगा बच्चा, है ना? और इसीलिए तो क्या मैं इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे दूं? ओके, यस, बिल्कुल सही है बेटा, दिस इज अ ट्रिक। सही है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन, सीकर मैंने आंसर लिखा है बेटा, इधर चेक कर लो, 63.3 वोल्ट। So wavelength of photon having energy wavelength of photon having energy 2 electron volt। क्या हम इसमें से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे? फंटास्टिक, फंटास्टिक, वेरी नाइस बेटा। कौन बोला? वेरी नाइस बेटा, विराज, व्रज, आई एम सो सॉरी, नॉट विराज, व्रज। या फंटास्टिक। E equals to hc by lambda यूज कर लो। So lambda will be equals to hc by E. Now this E, okay, if it is 2 electron volt, it has to be 2 into 1.6 into 10 to the power कितना? -19 joules. Why? Because 1 electron volt will be equals to 1.6 into 10 to the power -19 joules. ऐसा भी तो निकल सकता है ना बेटा? जो लोग नहीं निकाल पाए, ओके, कोई बात नहीं, मैं इसलिए लिख भी रहा हूं, आप लोग करते रहिए बेटा प्लीज। 620 नैनोमीटर, 620 नैनोमीटर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। अगर सपोज एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो 6.20 into 10 to the power 3 एंगस्ट्रॉम, 6.20 into 10 to the power, बिल्कुल सही है बेटा। डोंट यूज द गैजेट्स प्लीज, ओके, गैजेट्स यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए मूव अहेड, और 2-3 क्वेश्चंस कराता हूं। ओके, एंड फॉर ऑल ऑफ यू बेटा, दिस सेशन वाज नॉट कि भाई मैं कितना होशियार हूँ, है ना, या मेरे मुझे भाई आपको आना चाहिए, तो आई जस्ट वांटेड टू अपॉइंट विद यू। ओके, आपके साथ मैं अपॉइंट करना चाहता था कि हाँ यार, ये सारी चीजें बच्चों को पता है ना?
ठीक है। और रही बात आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का है बेटा, वो सर ने पढ़ाया होगा, शायद आप लोगों को वो क्लिक नहीं कर रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस अगर कुछ क्लिक नहीं हो रहा होगा, एक बार नोट्स देख लेना प्लीज अपना अपना। ओके, ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन बोलता हूँ, थोड़ा सा लंबा सा करते हैं। ओके, और मैं जानबूझ के थोड़ा आसान आसान न्यूमेरिकल से शुरू कर रहा हूँ। ओके, the velocity of electron okay, कोई बात नहीं बेटा, I'll just get back. Okay, हाँ, क्या नहीं समझा बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, क्या होता है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ईवी। ये कहाँ से आता है बेटा? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अच्छा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी बेटा? हाँ, प्रथम इलेक्ट्रॉन का क्या लिया बेटा मैंने? काइनेटिक एनर्जी लिया ना। ईवी इज अ काइनेटिक एनर्जी ना बेटा। लिख के रखो, आप अपने पास में लिख के रखो, डोंट वरी। ओके, और एक चीज बेटा, और एक चीज, किसी को अगर कुछ नहीं आ रहा है तो डोंट फील लाइक वाइज, ठीक है, कि भाई अरे यार मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मेरा क्या होगा? डोंट वरी बेटा, है ना? जस्ट लेट मी नो। ओके, लेट सर आल्सो नो ओवर देयर। ओके, ठीक है, वो सब आपकी मदद करेंगे, डोंट वरी बेटा। भाई जब हमने स्टार्ट किया था भाई, हमको क्या आता था? हमको तो नहीं आता था बेटा। वो जो जब जब हम सीखेंगे तो ही आएगा ना, अपने आप कैसे कैसे आएगा, है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट ना। एवरीबडी इज अ गुड लर्नर, एवरीबडी हैज टू बी अ गुड लर्नर। ठीक है, मैं भी बहुत सारी चीजें सीखता हूँ बेटा। ओके, सो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, मैं ज्यादा भाषण भी नहीं देना चाहता। ओके, दैट्स नॉट माय फोर्टे। ठीक है, पढ़ाओ यार, जो चल रहा है मस्त करो। ओके, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन बोर्स ऑर्बिट, okay, of hydrogen atom bears the ratio 1:275. Okay, to the velocity of light. Okay, now the first part is, what is quantum number? Okay, n of orbit, and second one, wave number of radiations, emitted. Okay, when electron jumps from किधर से किधर जंप करेगा बेटा? n+1 to ground state. Okay, now this is the question. You just take 2 minutes to think over it. आप अपना बुक में या जो भी रफ पेपर पे करना चाहते हो उस पे करो। ओके, जस्ट टेक 2 minutes. एंड डोंट वरी, अगर वो क्लिक नहीं होता है कोई बात नहीं है, इट्स नॉर्मल है, ये नॉर्मल बात होती है। क्लिक किया बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लिक किया सो डोंट वरी। n is 0.726। नहीं बच्चा, थोड़ा कैलकुलेशन में कुछ गलत हो गया बेटा। मंथन देखो,
ओके सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करो कि भाई वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. So velocity of electron Vn, okay, is 1 upon 275 that of velocity of light. Yes, Advait, correct है, एकदम correct है बेटा. Okay, so you can just take it 2 ना बेटा, क्योंकि n का वैल्यू 1.9 नहीं हो सकता. अद्वैत, व्रज व्रज 199 नहीं आ रहा है बेटा मंथन, 1.9 आ रहा है एग्जैक्टली. ओके, विच इज इक्वल टू 2, तो n का वैल्यू 2 हो गया बेटा. विहान बिल्कुल सही है बेटा. कोई बात नहीं बेटा, जिनको नहीं आ रहा है आई गेस, आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, लगभग 63 बच्चा है. सॉरी एक्सक्यूज मी. So V of n is 1 upon 275, okay, into velocity of light. बेटा जिसको नहीं आता है ना बेटा, I mean please you can just go through this one, या फिर आप पूछ भी सकते हो सर मुझे नहीं आ रहा है, आप बोल सकते हो, है ना. क्या होता है ना बेटा, हमारे इधर एक वर्ड होता है भाई, क्या होता है, टीचर के आंग में नहीं आता है. आंग में नहीं आता है मतलब मुझे अपने आप पता नहीं चलता बेटा, मैं अंतर्यामी थोड़ी है ना. अगर नहीं आता है ना, you can straight forward start writing, no मुझे नहीं आया. ओके, डोंट वरी. ओके प्लीज भाई, है ना. एज अ टीचर मतलब मुझे अगर पता चला ना बेटा आपको नहीं आया, इसको नहीं आया, तो आई कैन हेल्प यू आउट. रोहित 9.76 नहीं आ रहा है, 1.9 के करीब आ रहा है बेटा. प्रथम 1.78, आई थिंक थोड़ा सा कुछ अप्रोक्सीमेशन में गलती हुआ है. दीप्ति इट्स ओके, 1.9. ओके, देन 1.98 करेक्ट. ओके, 1.98 विल आल्सो डू. मेरा हिसाब से 1.9 तक आना चाहिए आंसर. 1.98 Vansh, good, good beta, good. 1.9 Vraj, good, good, very nice. Okay, what about others? Rohit 1.9, good, good, good. बाकी लोग बेटा नहीं आया बोलो, नहीं आया ना, क्या है मैं बताएगा तो मुझे समझ में आएगा. 1 point, yes नील बिल्कुल सही है. ध्रुव fantastic. Yeah, it has to be 2 बेटा. रोहित you need to write down 2, क्योंकि ना बेटा जो हमारा ऑर्बिट होगा वो कभी भी 1.99 नहीं हो सकता ना. अंशुल फंटास्टिक, अब 4 डिजिट तक कैलकुलेट करियो बेटा. Wave number is 90. Wave number is coming to be 97 nanometer. You need to check that. Yeah, 199 ही आ रहा मंथन, चेक करते बेटा. Okay, don't worry. So Vn is 1 by 275 of the velocity of light. 1 upon 275 into velocity of light. It has to be into capita. 3 into 10 to the power 8 meter per second. सही है. But I want to just calculate this into centimeter per second. Okay, तो मैं 10 ले लेता हूँ, क्योंकि ये मीटर है ना, उसको सेंटीमीटर करना है मुझे, तो मुझे 10 लेना पड़ेगा इधर. देखो बेटा इसमें तो कहीं किसी की गलती नहीं हुई है, चेक करो, क्योंकि मुझे वो सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि मेरा वेलोसिटी वाला फॉर्मूला सेंटीमीटर पर सेकंड था बेटा. ओके, if you just remember Vn, हाँ मंथन अब आएगा बेटा आपका. ओके, सो Vn आप क्या यूज करोगे, Vn 2.19 into 10 to the power 8. Z by क्या आना चाहिए बेटा, n सेंटीमीटर पर. सॉरी हाँ बेटा, किसी ने कुछ लिखा है, वो राइटिंग, तो मैं देखना. वेव नंबर 9.76 आएगा into 10 to the power 4 सेंटीमीटर इनवर्स. मैं बाजू में लिख के रख देता बेटा. न्यू बार आ रहा है बेटा आपका 9.75, 76 भी चलेगा, into 10 to the power 4 सेंटीमीटर इनवर्स. आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बेटा. रोहित बिल्कुल सही है, चलेगा बेटा. 9.76, ओके, 9.76 into 10 to the power 4, 10 to the power 4 चेक करो. Vn ये यूज करना है बेटा, जिन लोगों ने नहीं किया. Vn आपका इधर वैल्यू था ऑलरेडी. Z, क्योंकि इसने क्या बोला है बेटा, हाइड्रोजन एटम बोला है, तो Z शुड बी इक्वल टू कितना बेटा, Z शुड बी इक्वल टू 1. ओके, इसके ऊपर से आपका n का वैल्यू निकलेगा, और n का कैलकुलेशन करके अगर सपोज देखो तो मैं 2 आंसर, मतलब 1.9 आ रहा है, which has to be taken to equals to 2. I'm so sorry. ओके,
दिस हैज टू बी द फर्स्ट पार्ट। बेटा जिसने जिसने नहीं किया ये देखो, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, है ना बेटा? ओके, सेकेंड वाला करते। Oh, you use energy. Okay, बेटा। ओके 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 ओके, मुझे वेलोसिटी दिया था ना बेटा, तो मैंने वेलोसिटी से स्टार्ट किया। अब वेव नंबर, ओके, न्यू बार शुड बी इक्वल टू 1 by लैम्डा। या शिखर, एक मिनट शिखर, आपने आंसर लिखा है क्या बेटा? या 9.77 into 10 to the power 4 is correct बेटा। हाँ बिल्कुल सही है बेटा नील। ओके, 1 by लैम्डा आप ये भी यूज कर सकते हो ना, 1 by लैम्डा, ओके, इक्वल टू RH Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square, यूज कर सकते हैं ना बच्चा? यस, रेडबर्ग्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने बोला कि n+1 ग्राउंड स्टेट से हुआ बेटा। अब n का वैल्यू कितना आ गया आपका? 2 आ गया ना बेटा? यस, तो n+1 यानी कितना बेटा? 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 ना बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 109677। z is 1 1 square 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square ना बचा। अब कैलकुलेट करो, जिसका जिसका नहीं आ रहा था वो देखो बेटा। Yes, it will be 9.76 into 10 to the power 4 capita centimeter inverse. Fantastic. I'll take out one more question, okay, from my feather. देखो यार ये क्या प्रॉब्लम है ना, मेरे को क्वेश्चन लर्न नहीं रहते हैं, तो कभी कभी टेंशन हो जाता है। ओके, I'll just check out कि जो जो क्वेश्चंस कराता ना वो। In the formula wave number is the 1 by lambda equals ना बेटा, मुझे क्या निकालने का था बेटा? This is 1 by lambda ना बेटा, ओके, है ना? तो दैट विल बी इक्वल टू वेव नंबर। मुझे 1 by लैम्डा लिखने की जरूरत ही नहीं, उसने वेव नंबर बोला था, तो न्यू बार लैम्डा 1 by लैम्डा भी ऐसे ही लिखा। ओके, दैट डजंट मीन कि हमने लैम्डा का वैल्यू निकाला, वी आर कैलकुलेटिंग वेव नंबर। ये 10 to the power 4 आएगा ना, इसके कारण 109677 है। Yeah, it's one, देखो न्यू बार that is wave number is 1 by lambda beta, it's reciprocal of wave number, is reciprocal of lambda, okay, that is wavelength is wave number. या z स्क्वायर बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए कितना आएगा बेटा? z 1 आएगा ना बेटा? z इज एन एटॉमिक नंबर ना बेटा? Okay, I'll just give you another question, yeah, don't worry. Most probably the last question, क्योंकि 9 o'clock तक है आज क्लास, so don't worry. Yeah, perfect. Yeah, perfect बेटा. Okay, I'll just go for another question. So for all the participants, okay, 2 विकेट गया, कोई बात नहीं. A bulb, okay, emits light of lambda 4500 angstrom. Okay, ये ऐसा क्वेश्चन आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएगा. The bulb is rated as 150 watts. Okay, and 8%
okay, of energy is emitted as light. Okay, how many photons okay are emitted by the bulb okay per second? This is a question. Yeah. Take your time. Take your time. (27 into 10 to the power 18). Perfect. Perfect. Pratham, fantastic beta. It's very nice. For those जिनको शायद दिक्कत हुई होगी तो मैं बोलता हूँ a bulb emits a light of lambda. lambda दिया हुआ बेटा. तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ वन फोटोन 20 नहीं आ रहा है बच्चा, 18 आ रहा है. 10 raised to power 18 आ रहा है बेटा. यश 27 into आ रहा है. Yeah, you can just take it electron volt also. But अभी देखो एनर्जी मुझे पता है E equals to hc by lambda. Now this energy is of one photon, ना? Okay, check करते बेटा विकास. Now energy of one photon equals to hc by lambda. Okay, that is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second into 3 into 10 to the power 8. हाँ चलेगा बेटा, NHC by lambda भी यूज कर सकते हो आप और इक्वेट भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, डोंट वरी. E इक्वल टू NHC by lambda, E के जगह पे मैं जो है ये भी रख सकता हूँ. तो मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ यहाँ पे क्या करेंगे. तो ऐसा पहले कर सकते हैं. ओके, डिवाइडेड बाय 4500 एंगस्ट्रॉम बोला into 10 to the power minus 10. ओके, ये E निकल के आ जाएगा. और एनर्जी एमिटेड बाय बल्ब, फिर मैं इसको शॉर्टकट भी बोलता हूँ. So energy emitted by bulb will be equal to 150 into 8 divided by 100 होना चाहिए बेटा. क्यों? 8% बोला ना बेटा उसने. 150 watt है, उसका 8%. So 150 into 8 by 100 ना बेटा. That will be joule. ये total energy है. Now N into E should be equals to E total ना बेटा. या दीप्ति, दीप्ति उसमें एक पॉइंट मिस कर. हाँ हाँ ठीक है, सही है, सही है बेटा. Michael, I'll just check it out for you. दीप्ति क्या कह रही है? 2.7 into 10 to the power 2.7. हाँ सही है बेटा दीप्ति, दीप्ति करेक्ट है. yes, and आया गुड माइकल. n equals to 0.0048. नहीं बच्चा, श्रीकर नहीं बेटा. okay, n e equals to n total ना बेटा. n will be equals to e total by e ना बेटा. okay, so n will be equals to e total कितना है बेटा आपका? 150 into 8 by 100 divided by
17 बेटा कुछ मिस कर रहे हो आप। अंशुल 34 नहीं नहीं बच्चा, देखो अब ये क्या करेंगे 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई क्या बेटा 4500 इंटू 10⁻−10 ना। अब आप कैलकुलेशंस करो, अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो इसका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 27.2 इंटू 10⁻18 ओके फोटॉन्स। या अगर किसी ने 2.7 में लिखा है तो 2.72 इंटू 10⁻19 होना चाहिए बेटा। तो किसी का 17 आया था। अब इसको मैं डायरेक्टली भी, ओके बेटा विकास, इसको मैं डायरेक्टली भी तो लिख सकता था ना बेटा। मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता था, देखो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता था एन सॉरी टोटल एनर्जी ई, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, ये भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, जहाँ पे ये ई टोटल है, टोटल एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इज गिवन टू बी, ये देखो 150 इंटू 8% बोला ना, 8/100 विल बी इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, ये लिया आपने है ना एच सी बाई लैम्डा और सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो भी आपका डायरेक्टली आंसर निकलेगा। आई गेस हमारे पास में थोड़ा टाइम और बचा है, मैं एक और कर देता हूँ। हाँ शुभम, मुझे समझ में आ गया था, आपने 17 लिख दिया था गलती से, इसलिए मैंने आपको बोला एक बार चेक करो। कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास में टाइम है बेटा, हम एक और सम कर सकते हैं। ओके मैं एक और सम लिखता हूँ फटाक से, चलो ओके। If the critical wavelength for producing photoelectric effect is 2000 angstrom, okay, then what wavelength of light will be required to produce photoelectrons with double the kinetic energy of those produced by light of wavelength 1500 angstrom। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन दिया मैंने आपको, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी याद है? मैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख देता हूँ, E equals to E naught plus KE, isn't it? HC lambda, HC by lambda will be equals to HC by lambda naught plus KE, where lambda naught is a threshold, okay, या critical wavelength। क्या बेटा क्यों 0 होगा बेटा? डबल लेना है ना काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन पढ़ो बेटा एक बार, इफ द क्रिटिकल वेवलेंथ, हाँ बेटा नहीं नहीं 1500 प्रोड्यूस बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ, देखो बेटा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ना बेटा, जिसका लैम्डा कम उसकी एनर्जी ज्यादा ना बच्चा। है ना ब्रज, गुड। ये देखो ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है अपने से, कोई बात नहीं बेटा, इट्स बेटर कि भाई हम ये अभी करें तो फिर पेपर में नहीं करेंगे।
तो भाई मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ ना, इसको ऐसा लिख दूं क्या बेटा कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू hc lambda minus hc by lambda naught, या should be equal to kinetic energy will be equal to hc कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ यार। hc by कितना था बेटा पहले 1500 माइनस hc by 2000, ओके। uh, 1906 मेरे हिसाब से आंसर 1200 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए। Now 2 KE should be equals to hc upon x minus hc upon 2000, ऐसा होना चाहिए। चेक करो बेटा, सॉल्व करो, मैंने दोनों इक्वेशन लिख दिया आपके पास में। आप क्या करो, के का वैल्यू पुट कर दो ना उसमें, 2 into hc by 1500 minus hc by 2000 should be equal to hc by x minus hc by 2000. So we just take out, क्या बेटा hc कॉमन ले लेते हैं ना सब में से, ओके तो hc तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना, ऐसे डायरेक्टली कैंसिल कर दूं, सही है ना बेटा। So 2 into 2000 minus, yes, 1500 divided by 1500 into 2000 equals to, यहाँ पे आएगा 2000 minus x upon 2000 x, सही है ना। तो 2000 कैंसिल कर दो ना नीचे बचा। अब सॉल्व करो, आपका x का वैल्यू जो है वो 1200 ही आएगा बेटा। आ रहा है बेटा, 1200 आ रहा है बेटा। निशाबुद्दीन, वन सेक, चार्ट कहाँ चले गया। निशाबुद्दीन, क्या हुआ बेटा, मिसबाउद्दीन नहीं आया बेटा। मिसबाउद्दीन, अच्छा विकास कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ओके। प्रख्यात आया है। श्रीकर, श्रीकर कुछ कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशंस में कुछ दिक्कत हो रही बच्चा आपकी। दक्ष जैन, ओके 1200 एग्जैक्ट, ठीक है आपने लिखा 1200 प्रथम, जस्ट गॉट इट नील, ओके। वन सेकंड, जस्ट स्विच ऑन माय कैमरा, तो हो सकता है कि आपका ये जाए, ओके वन सेक, जस्ट so could also see me also, fine, so okay, so there I'm so sorry, okay बच्चा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट आई गेट टू नो यू एंड यू आल्सो गेट टू नो मी, ठीक है। मेरा थोड़ा सा है मतलब थोड़ा टोन थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का आदत है, एंड समवेयर यू फील लाइक वाइज हम पटापट करेंगे, ठीक है। तो yeah, same here Madhav, I'm very happy to talk to you all, okay, once a while when I'll be there into Mumbai, I'll get to see you all, okay, वहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, एनीथिंग यू वांट, और जितने भी डाउट्स रहेंगे वो भी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है, ओके। तो क्या हो जाएगा ना, या आई एम टू एक्साइटेड टू मीट यू ऑल आल्सो, ओके। हाँ थोड़ा लेंदी हो गया होगा, बराबर है बेटा, तो वो क्वेश्चंस करने के टाइम में थोड़ा लेंदी हो जाता है, कोई बात नहीं, है ना। सो गुड गुड गुड, इफ यू आर यूजिंग योर ओन ट्रिक्स दैट इज बेटर, ओके। तो नेक्स्ट वाले क्लास में ना आई जस्ट
थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, ठीक है बेटा? सो इट वाज वेरी नाइस, ओके, या some of the questions were fun, some of the questions were a little bit tedious, okay, कभी कभी ऐसे भी लगता रही क्या चल रहा है यार, okay, yeah, okay, this was a first class and that's why a little bit slower this time. Next time से बेटा स्पीड थोड़ा तगड़ा रहता है, ओके, सो एटलीस्ट एक सेशन में कम से कम 25-30 क्वेश्चंस हो जाता है, ओके। सो आई वाज बीइंग चेकिंग इट आउट कि भाई किसको किसको हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है तो फिर उसको भी मदद करना बहुत जरूरी है बेटा, है ना, क्योंकि क्लास सबके लिए है ना। सो दैट्स इट, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, मैंने कहा ना इट्स नॉट माय फोर्टे टू टॉक मच, ओके, पढ़ाना मुझे आता है, ओके, बाकी भाषण देना थोड़ा सा टेंशन होता है मेरा। So it was nice talking to you, nice meeting you all people. Okay, next time, next class, okay, we'll have fun, more questions. Thanks a lot. Good night. Yeah, take care. I'm sorry. Bye bye. Bye bye, beta. Bye bye. Bye. Take care. Good night. Good night, Naitik. Sure. Bye bye, beta. Shubham. Bye. Som. Bye. Take care. Bye bye, Yug. Cha. Dhruv. Bye. Shubham. मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया बेटा शुभम, थैंक्स अ लॉट। युग, वे, बाय बेटा। Yeah, okay ma'am, so I'll just take your leave now, okay, thanks a lot.